technology has taken over, as I'm discovering, much to my consternation. So we're going to stand on the side, and we're going to let technology take over, and then we're going to come back once again. So we're just going to stand out here, and they're going to press their button thingy and start. Okay. तो कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी. एज़ यूजुअल एक और सुपर हिट बुक, एंड जैसे कि मैंने कहा, बुक्स में ये हमारी बाहुबली 3 है. तो अमिश को मैं काफ़ी अभी आई थिंक सालों से बोल सकती हूँ, 1-2 सालों से जानती हूँ. एंड आई थिंक जिस तरीके से इन्होंने रेवोल्यूशनराइज किया इंडियन ऑथर्स को, हमारे Indian authors were little lesser known than what most of us girls would buy, Daniel Steele or Mills and Boons, ये वो फलाना ढिमका बहुत होता था. But जिस तरीके के books अमिश लेके आए, I mean the trilogy, the Shiva trilogy, I cannot tell you what a revolution it was. It was with Immortals of Meluha, and I cannot begin to express the fan following that Amish has from that book. It was like a wave, it was like a tidal wave, and मैं जहाँ भी जाती थी तो people were reading this book. यहाँ तक कि मैं आप लोग को एक किस्सा बताऊँ जो मैंने इनको बताया. मैं इनकी तीसरी जो ट्रिलॉजी की 3rd बुक थी, it was The Oath of the Vayuputras. मैं एक फ्लाइट में थी from Los Angeles to London, and मैं बहुत मज़े से प्लेन में बैठी थी, एंड मैंने ऐसे ही कहीं बीच में ऐसे करके मुड़ के देखा जो मेरी बगल वाली सीट में थे. आई वॉज रीडिंग ओथ ऑफ वायुपुत्रास, और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे बाजू वाली सीट में कौन था. इट वॉज Al Pacino. It was Al Pacino next to me, and I went like, and he was like, yeah, hi, and I'm Al Pacino, whatever. And I said, so, I hate introducing myself. मैं ये नहीं बोलना थी हिंदी फिल्म की मैं हीरोइन हूँ, मैं ऐसा सब कुछ नहीं करती हूँ. हाँ, I was very starstruck and everything. And then he asked me, which is this book that you're reading? And I told him, this is Oath of the Vayuputras. It talks about our ancient India and about our history. And yes, there is a bit of fiction, but it's mostly based on facts and records of what we've heard and what we've learned over the years. And when we got down at the airport in London, I made him buy the book. I made him buy Immortals of Meluha and the book. So Al Pacino has his books. And I sent him a snapshot. मैंने अमिश को एक snapshot भेजा. I made him write on the book. And I sent a snapshot to him. I said, see, Al Pacino with your book. So, like I said, it's not only India that has a huge fan following now. Now I can say he has an international fan following. And I'm so proud and honored to be here that Amish thought of me to be a part of this glorious book that I think we are all waiting for, especially all the women in India who feel so strongly, because ancient India had very strong, powerful women. We were free to make our choices, we were free to do what we want, and I hope that era comes back. So I think somewhere he's instilling that Sita in all of us, and long live Ma Sita. That's all I can say. Congratulations. Fantastic. So अमीश की जितनी भी कलेक्शन है आपके घर में, उसमें एक और जो किताब जुड़ने वाली है. I'll request Amish and Ravina.
That's my son. That's my wife. I guess as much. And yes, you can come up here. Come. Join us. No. Okay. I think you should. Yes. Poor thing, he's still skin eye. हाँ जी. So, can we start the Q&A session now? Yeah? The floor is open for your questions. Ajay, mic. No? You're standing? Okay. No problem. Done. हाँ 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 साइड में रखा वो पानी there that's fine yes yeah you want to say a few words No, I think let's just. सबने अपने सवाल वो जो इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके लिए बचा के रखे हैं, राइट? मैं पहला सवाल पूछ लेती हूँ. या ओके. रवीना, मैं जैसे ट्विटर पे आपको फॉलो करती हूँ. मेरा हो गया अरे मैं तो हाँ इनसे भी पूछूंगी. ये सवाल जो है वो होते हुए इनकी तरफ ही पहुंचेगा. आपके जो ओपिनियंस हैं, जो आप एकदम खुलकर जो भी लिखती हैं, कहीं ना कहीं वो दिखाते हैं कि आपको डर नहीं लगता. तो क्या ऐसी ही सीता आपको लगता है अमीश की सीता वॉरियर ऑफ मिथिला में नजर आएंगी? मैंने किताब नहीं लिखी है, ये तो आपको अमीश से ही पूछना पड़ेगा. आपके साथ में ही खड़े हैं. इसका जवाब आप दीजिए. मैं प्री रिलीज कॉपी आपको भेज दूंगा मिड मे तक, तो तब आप पढ़ के तो फिर ये मुझे आपको देखना जवाब दे पड़ेगा देंगे. मैं पढ़ चुकी होंगी. मैं कितनी हूँ सीता में. लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ कि हाँ, थोड़ी बहुत निडर हूँ मैं. काफ़ी बार ऐसे भी हुआ है कि जब आप सच्चाई बोलो तो कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती है, लेकिन मैं रूड नहीं हूँ. मैंने कभी मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन जो सही चीज़ है और जो whatever is the right thing to do, I try to do that as much as I can. But I am not the kind who will intentionally want to hurt anyone's feelings. So I keep that definitely in mind. But I do fight for the right thing, and I do fight for justice, probably, yes. But not the way Sita fights. I mean, There's a lovely Sanskrit line which describes exactly what she said. Satyam bruhat, priyam bruhat. Speak the truth, but speak it with love. Exactly. जो प्यार से चीज़ सॉल्व हो सकती है, मुझे लगता है लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकती है. लेकिन जब अपने आप को डिफेंड करने की बात आ जाती है, तो फिर मैदान में घुस जाना चाहिए. And actually, that's what this scene is about. This is actually about the kidnapping of Sita Ma. So she's not someone who's just picked up by one person. There are 100 soldiers who attack her. She's outnumbered, but she's an alpha female. So even when she's outnumbered 100 to 1, she's not defensive. She attacks. She charges. She breaks a few heads. She kills a few. She's outnumbered, so she loses. And hence she's kidnapped. This is actually that scene. She's attacked by 100 Lankan soldiers and she's fighting them. Yes, darling, I was waiting for you. हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं. आज तक जो आपने सीता माँ की जो कहानियाँ सुनी हैं, आपने रामायण को सीता माँ के नज़रिए से पढ़ा होगा शायद. और रामायण जो शब्द रामायण जी है वो श्री राम की कहानी है. यन मतलब जर्नी, तो जर्नी ऑफ राम, रामायण का अनुवाद वही है. ये रामायण सीता माँ के नज़रिए से नहीं है, ये सीता माँ की कहानी है. उनके जन्म से उनके अपहरण तक
जिसमें श्री राम एक पात्र हैं जो किताब के लास्ट एक तिहाई में आते हैं। तो ये उनकी कहानी है कि वो कैसी एक योद्धा थी। और हमारे मन में जो छवि है सीता माँ की, वो एक 1980s टीवी सीरियल पर आधारित है ज़्यादातर। लेकिन आप प्राचीन रामायण पढ़ें, अद्भुत रामायण पढ़ें, उसमें वो योद्धा थी। रावण का वध सीता माँ ने किया था, श्री राम ने नहीं, अद्भुत रामायण में। मैं आपसे यही पूछी हूँ कि अभी तक राम की कहानी सुनाई जाती थी, अब वक्त आया जब सीता की कहानी सुनाई जा रही है। सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है आज के भारत में। और हमारे प्राचीन स्क्रिप्चर्स में भी लिखा हुआ है, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती उस देश को भगवान भी त्याग देते हैं। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। हमारे एंशिएंट कल्चर को रिवाइव करने की ज़रूरत है। आपने रवीना से क्यों कवर लॉन्च करवाया? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग, अग्रेसिव, सक्सेसफुल वुमन है। और मैं इस किताब में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मैं सब इवेंट्स एक स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल वुमेन के साथ ही कर रहा हूँ। तो जो अनाउंसमेंट हुआ था किताब का, वो स्मृति ईरानी जी के साथ हुआ था। कवर लॉन्च रवीना टंडन जी के साथ। Sorry for being here this evening. And हाँ जी, आ गए? सीता के बारे में जैसे बताया सर ने कि जी हाँ राकेश। परसेप्शन बदली है सीता को लेकर कि योद्धा थी। सर ने कहा कि वो 1980s के सीरियल की तरह दिखाया है, लेकिन ये बुक में योद्धा दिखाया उन्हें। तो कुछ परसेप्शन बदली है आपकी सीता को लेकर? देखिए, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये मुझे ऑलवेज एक जानकारी थी कि जो हमारी औरतें थी, जो एंशिएंट इंडिया की औरतें थी, काफ़ी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी भी हुआ करता था। एंड जहाँ के औरतों को फ्रीडम था, न कुछ ऐसा पर्दा सिस्टम था, न कुछ ऐसे था कि आप औरत हैं तो आप ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपने अगर हमारी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारी बहुत बुलंद रानियाँ रह चुकी हैं जो जुनून लेके योद्धा भी होती थी। तो वो हमारा एंशिएंट इंडिया था। कहीं ना कहीं वो कुछ परसेप्शन बदलता गया अबाउट इंडियन विमेन। एंड जैसे कि आमिश ने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी औरतें रहती थी और जहाँ हमारी जैसे लिनिएज जिसको बोलते हैं, जो एक नस्ल चलती आ रही है, उस नस्ल को वापस और हमारी औरतों को वापस उस मुकाम पर लाना जहाँ आदर, रिस्पेक्ट और उनको उनके राइट्स दिए जाए। तो फॉर मी सीता जहाँ तक कि मेरे समझ में थी, अंत में भी उन्होंने कभी अपनी खुददारी नहीं खोई। आप अगर पूरा पढ़ें तो जिस रूप में आमिश उनको ला रहा है, वो बहुत ही इट्स अ रेवलेशन एक्चुअली। शायद नॉट फॉर पीपल लाइक मी, जिनको ऑलरेडी, मुझे ऑलवेज इंटरेस्ट था हमारी हिस्ट्री में, ऑलवेज हिस्ट्री इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग हैं जो अब तक कहीं ना कहीं जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको आई फील ऑलमोस्ट दबाया गया है। और जो हमको सिखाया गया, जो हमारे ब्रिटिश टेक्स्ट बुक्स में आ गया, वो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए टेक्स्ट बुक स्कूल में दिए थे, उसमें से हम जानकारी पाके वो ऑलमोस्ट टीवी सीरियलिश हो गया था। या तो जो अमर चित्र कथा से हमने पढ़ा वो हमें पता चल गया। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुक्स लाइक दिस टू कम आउट, वेयर वी स्टार्ट सीइंग आवर विमेन इन द ट्रू राइचियस, strong form that they've always worshipped in. That's why our women most of the time were worshipped. अगर आप देखेंगे, हमारी औरतें इतनी स्ट्रॉन्ग थी, एंशिएंट हमारा जो कल्चर था, कि चाहे आप नदियों को ले लो या हमारे पहाड़ों को ले लो, वो औरतों के ऊपर ही उनका नाम दिया जाता था। सो आई बिलीव दैट एंड इवन अगर आप हमारी धरती को हम धरती माँ, उसको उभर के वापस लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड आई थिंक विच ही इज़ डन विद द कैरेक्टर सीता। रवीना, इसके अलावा आपने कहा कि आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो बाहुबली काफ़ी अच्छा कर रही है बिजनेस के मामले में भी। बाहुबली इज फिक्शन, बाहुबली इज नॉट आवर हिस्ट्री। बाहुबली फिक्शन है, वो तो फिल्म है। पॉपकॉर्न लो, कोल्ड ड्रिंक लो, जाके एंजॉय करो और वापस आओ। आपने देखी, आपको कितनी आई थिंक क्वेश्चंस मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार ये फिल्म्स की। मैं क्यों नहीं कुछ बोलूंगी, को तो पसंद आई जी। मुझे तो पसंद आई। Amish, I like to ask one question. Like, after modern outlook of Ram in your first book, and then a very different personality of Sita in this book, which another character of Ramayana is stirring in your mind? Actually, the next book will be on Ravan. Actually, so there'll be my interpretation of Ravan, and I've started writing it already, and I'm having a lot of fun writing it. Yeah, so I'm kind of maybe one-tenth of the way through, but I'm having fun writing it. He started writing and I've already started thinking, किसको बुला सकते हैं रावण के लॉन्च पे?
ये किसको बुलाएगा वो मुझे देखना है। Don't suggest the guest names here. That's what will get printed. रावण का कवर कौन लॉन्च करेगा? इसके अलावा बुक पर फिल्में बनाई जा रही है, तो अगर सीता का किरदार किसी को निभाना होगा तो वो कौन होगी आपकी नजर में? यार ये आंसर मैं क्या दे सकता हूँ, रवि ना आप दे दो। अभी ना इस मंच पे किसी और का नाम लिया ना आमिश ने तो बहुत अच्छा नहीं होगा। नहीं, but really, I mean, going with the trend and everything, obviously, someone who symbolizes or looks that powerful enough, obviously, and when it is made into a movie, then we shall see. I'll be producing the film for sure then. 100%. Are we done? Thank you so much. Anybody else over here? Yes, sure. Hi, I'm Sankalpita from Book Geeks. I want to ask you what has been your best, most thrilling moment in your entire writing career? Besides this one? Yeah, thank you, Ravina. Entire writing career. Entire writing career is actually when my first book, Immortals of Melua, it was rejected by every publisher that it was sent to. And finally, we self-published because they said it's a religious book, so they said it will not sell. These are successful. And they said that the main market is the youth aren't interested in such subjects. So actually, we self-published the book. And my most thrilling moment was when the first print run came home, and my son was, no, the check wasn't that big those days. The check came home. But my kid was a year old at that time, and we opened the carton together, and he was kind of flipping through the book. That was one of my most favorite moments of my life, actually. Which is your son's favorite book? Like which Right you now? have written? Yeah. No, he can't read my books right now because there's some violence and he's only 8 years old. But Harry Potter? Yeah. Can I say Harry Potter? Okay, he's finished Harry Potter already. He reads a lot. Both his mother and father, we both read a lot, so he also reads a lot. He's a very smart kid. Self-published. For coming here and gracing this occasion. You've really made this event that much more special. And I should also thank the agencies who have designed this cover, this wonderful piece of work. That's Sideways out there. Abhijit, raise your hand. And Abhijit and team. And Arthat out there. These are the two geniuses who've actually put this together. Absolutely brilliant work. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. Okay, so individual interviews will happen shortly. Okay. कितना स्पेशल मौका है आपके लिए? आई थिंक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आमिश की फ़ैन रह चुकी हूँ। इनकी जो लिखी हुई किताबें हैं मेरे कलेक्शन में ज़रूर हैं और मैं इनकी बुक्स पढ़ती हूँ। और जैसे कि मैंने शुरुआत की और मैंने कहा मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने अपने बुक्स पेश किए हैं हमारी इंडियन जनता को एक काइंड ऑफ रेवोल्यूशनरी जैसे कहेंगे कि जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि पहले तो हम सिर्फ ऐसी किताबें पढ़ते थे मोस्टली जो इंडियन ऑथर्स नहीं इतने फेमस होते थे, लेकिन आमिश ने वो पूरा चेंज कर लिया है वो नोशन। एंड आज इनकी किताबें इतनी वाइडली पढ़ी जाती हैं। उसके अलावा इन्होंने जो हमारी हिस्ट्री थी, जो हमारा एंशिएंट पीरियड था, जिससे हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे थे, कहीं ना कहीं जो आज भी आप अगर काफ़ी टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो जो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए हिस्ट्री लिख के गए थे वही हम पढ़ रहे हैं और वही हम सीख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरा हमारा पास जो हमारी हिस्ट्री रह चुकी है, जो हमारा एंशिएंट कल्चर हेरिटेज रह चुका है, जिस तरीके से इन्होंने पेश किया, आई थिंक मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान ने कैसे इनको एक्सेप्ट किया है और कितनी इनकी बुक्स पूरे हिंदुस्तान में एक जैसे आग जैसे फैला देती हैं इनकी बुक्स, उस तरीके से उनकी बुक्स बिकती हैं। सो आई एम वेरी ऑनर्ड टुडे कि आज इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है सीता, विच जहाँ आप जैसे खुद आमिश के लफ्ज़ों ने इन्होंने कहा कि सीता एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं दब गई थी, छुप गई थी। ज़्यादातर रामायण में जब होलिस्टिकली बात करते हैं तो सिर्फ वही एक कहानी चलती आ रही है, लेकिन हर एक इंडिविजुअल
की कहानी क्या थी और वो कैसे बने जो, और उनके ऊपर क्या गुजरी, वो एक एक को उभर के ला रहे हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि आज इन्होंने सीता के ऊपर लिखी है। जितना आप प्राउड फील कर रहे हो उतना जो दूसरी महिलाएं हैं वो भी। अभी इनको पहले बोल रहे थे। हमें जैसे आपने जिक्र किया है सीता जी के बारे में, बहुत लीडर थे और इसलिए आपने रवीना को चूज़ किया अपनी और फोटो के लिए, या उसकी दूसरी कोई और वजह? नहीं, आपका जो सवाल है जवाब उसमें ही है। आप सही कह रहे हैं। ये इस किताब में जो भी इवेंट्स हुए, मैं सिर्फ महिलाओं के साथ इवेंट लॉन्च कर रहा हूँ, और ऐसी महिलाएं जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिन्हें खुद अपना मुकाम बनाया है। तो इस किताब की जो अनाउंसमेंट थी टाइटल की, वो मैंने स्मृति ईरानी जी के साथ की थी, और कवर लॉन्च मैं रवीना जी के साथ कर रहा हूँ। हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। इन्हें हम लोग ट्विटर में बातचीत हुई थी हमारी। इन्हें मेरी एक किताब पढ़ी थी और मुझे कांटेक्ट किया था। तो हर इवेंट में एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल महिला के साथ ही कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक ये रोल मॉडल्स हमें देश के सामने और प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी जो देश में जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो इन रोल मॉडल से प्रोत्साहित हों, इंस्पायर हों, और खुद भी आगे बढ़ें और देश को भी आगे लेके जाएं। फाइनली मतलब रवीना जी ने कही दिया कि वो प्रोड्यूसर बनेगी। मैंने कही दिया कि अगर मूवी बनेगी तो प्रोड्यूस करना चाहिए और ए फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि मैंने कहा, बाहुबली का 3rd है ये। बाहुबली 3 ऐसे बनेगी एक महिला के साथ। जैसे रवीना जी आपने कहा है कि आप मतलब आप हमेशा कोई भी मुद्दा हो तो आप खुल के बात करती हैं, तो अभी मैं जानना चाहूँगा भारतीय सरकार जिसमें नहीं, सिर्फ बुक्स के बारे में क्वेश्चन है। मैडम ने पहले हम लोग को बोला है। मैंने कहा मना किया, तूने मना किया था। मेरे ऊपर डाल रही है, मैं तो निडर बोलती हूँ। मुझे ही बोला था बुक के अलावा प्लीज मैम कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, मात्र काफ़ी अच्छा। भारत सरकार के 3 साल नहीं भैया, नहीं। Anybody else has a question? Anybody else has a question on the book? कहना चाहिए आपके हिसाब से? Ravina, you can pass the question. काय का इनिशिएटिव? कोई नया इनिशिएटिव भारतीय सरकार को लेना, 3 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, तो 26 में तो क्या कहना चाहिए इस बारे में? एक्चुअली इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मैं अभी किताब के बारे में ही मैं सब आई थिंक ये समय पे किताब के ऊपर भी बातचीत हो तो शायद बेहतर होगा। ये आप एक शायद दूसरे मौके पे पूछ लें तो बेहतर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उसको लेकर कितना प्राउड फील करते हैं, लेकिन स्क्रीन्स काफ़ी कम मिली थी मात्र को। जी हाँ, स्क्रीन्स कम मिली थी, लेकिन बाहुबली के आने के अलावा अभी तक मात्र चल रही है। जो दूसरी पिक्चरें नहीं चल रही है, मात्र अभी भी लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोने में टिकी हुई है। तो आई थिंक देखिए, ऐसी फिल्म जो सोशल मैसेजेस वगैरह के साथ हैं, वो इतने भी चल लेती हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो वो अपने आप में ही एक सक्सेस है। एंड जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ, 2 ही पिक्चरें चल रही है आजकल थिएटर, एक बाहुबली और एक मात्र। तो ये अच्छा है। जैसे मैं लोगों को एक और चीज़ बोलती हूँ, गलत मत समझिएगा, लेकिन इस समय 5 उंगलियां घी में, क्योंकि मात्र भी मेरी और बाहुबली भी मेरी है। सो आई कैन नॉट रियली डिफ्रेंशिएट के यू नो। सो इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड कि मात्र टिकी हुई है विद अ फिल्म लाइक बाहुबली। बट या इट्स मैं ऑडियंस को और जो आप लोग जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मदद की है मात्र के लिए और ऐसे एक सोशल मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या रिव्यूज क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? क्या रिव्यूज क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप मेरे ट्विटर लाइन पे जाइए, मैं रोज़ किसी रिव्यूअर को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी रिव्यूज़ आई हैं और बहुत तारीफ़ हो रही है फिल्म की। तो आप मेरे टाइम लाइन पे जाइए तो आप सब देखेंगे, चाहे वो डेक्कन क्रॉनिकल हो, टेलीग्राफ हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, मुंबई मिरर हो, एवरीवन्स लव द फिल्म। हाँ, यू कैन नॉट विन देम ऑल। कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, लेकिन यू कांट प्लीज़ देम ऑल। तो इट्स फाइन। वो 2-3 ऐसे ख़राब रिव्यूज़ आते हैं जिनको नहीं अच्छी लगी, शायद मैं उनके टाइप की पिक्चर नेक्स्ट टाइम करूँगी, उनको अच्छी लगेगी, और फिर वो दूसरे 10 हैं उनको नहीं अच्छी लगेगी। तो थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है।